वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक एक दिसंबर 2023 के न्यूज को। जैसे कि हमें मालूम है कि 1 दिसंबर 2023 अब जो है अब पीटी में बहुत कम दिन बच गए हैं। 25 मई को एग्जाम होने हैं, तो लगभग 4 से 5 महीना ही रिमेनिंग बच गया है। तो तैयारी के लिए जो है बहुत कम समय है। जैसे 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 डेट नियर आता है, हमारी फियर बढ़ती जाती है। तो इस फियर को हावी ना होने दें, और तैयारी कम बचा है तो इसमें सही स्ट्रेटजी से काम करें, और पेशेंस रखें, और अपने ऊपर विश्वास रखें, और अपना काम करते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं द हिंदू के फ्रंट न्यूज के साथ। जो आज का टॉप न्यूज क्या हो सकता है? तो आज का टॉप न्यूज जो है, हिट जॉब इज नॉट आवर पॉलिसी सेज इंडिया ऑन यूएस चार्ज। तो अमेरिका के आरोप की जवाब देते हुए भारत ने कहा कि हिट जॉब हमारी पॉलिसी, हिट जॉब हमारी नीति नहीं है, ऐसा कहा है। ये केस जो है एक खालिस्तानी समर्थक जो है अ, निरपंथ, उसका नाम है गुरपंथ गुरपंथ सिंह पुन्नू। गुरपंथ सिंह पुन्नू एक खालिस्तानी समर्थक है। इस पर जानलेवा हमला हुआ, जिस पर अमेरिका ने कहा कि जो है इस जानलेवा हमले पर जो है भारत का हाथ है। अमेरिका का चार्जशीट एक दावा किया गया है। दावे में जो है कि हमारी पॉलिसी नहीं है कि जो है हम जो हमारी जो राजनयिक पॉलिसी ऐसी कभी नहीं रही है कि हम जो हमारे साथ जो मित्रता संबंध है उस पर हम अटैक करें, उसको ब्रेक थ्रू करें। द लिंकिंग the linking of an Indian official to the plot to kill Khalistani separatists. The US case in matter of the concern, the Ministry of External Affairs (MEA) said on Thursday in its first such reactions on two charges the field in New York court a day early. तो न्यूयॉर्क के द्वारा एक चार्जशीट दायर किए गए, उसके जवाब देते हुए जो है उसमें कहा गया कि जो इंडिया जो केस है, मैटर है, जो खालिस्तानी समर्थक है उसके मैटर का जो लिंक है भारत के ऑफिशियल आधिकारिक रूप से भारत के साथ है। तो उसके जवाब में भारत ने कहा इट वुड इन्वेस्टिगेट द यूएस indictment of Indian national Nikhil Gupta, who allegedly hired a hitman to kill six for the Justice founder Gurtwant Singh Punnu earlier this year. However, this case does not change India's positions on similar allegations leveled by the Canada in connection with the killing of Khalistan Tiger Force chief Hardeep Singh Nijjar in June after Canadian Prime Minister Justin Trudeau said the US indictment should make India take Canada allegations seriously. The MEA Ministry of External Affairs responded that the space space given by Canada to anti-Indian extremists remain at the heart of the issue. Retreats stand as regard the case against the individual that has been filed an US court allegedly linking him to an Indian official. This is a matter of concern. We have said that, and let me reiterate that this also contrary to government policy. MEA spokesperson Harminder Bagchi said at a media briefing on Thursday. While the briefing was intended to discuss, Prime Minister Narendra Modi visited Dubai for a UN climate summit uh, for a Foreign Secretary Vinay Partha and Mr. Bagchi alleged also fielded a number of the question on the US indictment which had been made public
Late on Wednesday evening, the indictment described a senior Indian official based in Delhi and telling the security and intelligence matters to the main indictment. The plot who enlisted enlisted Gupta, a person involved in legal trade of drugs and weapons, who arranged the assassination assassinations of Punnu, the charge which have been founded worthy of the prosecutions by the grand jury in the US, did not name the Indian official referred to as a CC, but said that the had been identified. तो यूएसएस के द्वारा एक चार्जशीट में कहा गया है कि जो गुरपंत सिंह पुन्नू पर जो जानलेवा अटैक है, इसमें भारत सरकार का हाथ है, ऐसा आरोप लगाया, जिसका भारत सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जो स्टैंड है ऐसा जो भी स्टैंड है इन्वेस्टिगेट उच्च आधिकारिक रूप से इस पर जो है जांच आयोग बैठाया जाएगा। वी सच इनपुट द सीरियसली नेसेसरी। भारत ने कहा कि ऐसे मैटर के लिए हम जो है सीरियस हैं और इस बात को लेकर पर सीरियस हैं और इस पर कार्यवाही करने के लिए कमिटमेंट है, ऐसा जो है भारत का स्टैंड है, कहा है भारत ने। दूसरा जो हमारा लिंक है इसको जीएस पेपर 2 के साथ, इस आर्टिकल को जीएस पेपर 2 के साथ हम लिंक कर सकते हैं भारत और अमेरिका के रिलेशन के साथ। भारत के अमेरिका के साथ कैसी रिलेशन है और कैसे होनी चाहिए और आगे की राह क्या होनी चाहिए, पर लिंक कर सकते हैं। आगे इस पर और भी आर्टिकल्स होंगे और भी एनालिसिस की जांच के बाद और भी, तो उसमें हम लिंक करके देख सकते हैं। GDP surges 7.6 in a quarter whose past RBI forecast। तो कहा गया है कि भारत का जीडीपी जो है 7+6 से सरचार्ज हुआ है, अब बढ़ी है जीडीपी भारत की, ऐसा जो आरबीआई के द्वारा पूर्वानुमान लगाया गया था, फोरकास्ट किया गया था कि भारत की जीडीपी बढ़ेगी, पर जो है तिमाही में 7.6% बढ़ाई और आरबीआई के पूर्वानुमान से बाहर निकल गई, आगे निकल गई। Despite the tangible growth downturn in the farm and service sector as well as the consumer spending, India gross domestic product GDP grew at the higher than expected 7.6 in the September 2023 quarter as per initial estimate from the National Statistics Office. The second quarter growth was the slightly uh, slightly lower than the 7.8 rise in a previous quarter, but well power over the central bank projected an uptick of 6.5 growth in the gross value added. Is the economy eased slight to 7.4% in the second quarter of 2023 and 4 from 7.6 in quarter first, but the GVA growth in the farm sector exceeded sharply to just 1.2 from the 3.5 in the quarter first, while it's more than doubled for service sectors such as trade, hotel, and transport from 9.2 in first quarter to 4.3. Constructions pushed the first half 23 and 24 has thus provisionally recorded 7.7% the GDP, with the GVA rising 7.6%, led by a 10.5% growth in construction and 9.3 upstick manufacturing. While growth is expected to moderate in the second half of the year, economics expected strong first half members in lift the full year performance by 0.1% to 0.2% over
current projections, the RBI and the government expected GDP to grow 6.5% this year. Considering that the RBI expected quarter three and GDP quarter four GDP growth at 6% at the 5.4 respectively, the annual growth is estimated 6.4%, said EYK India Chief Policy Advisor DK Srivastava। तो जो कि टेंजिबल ग्रोथ डाउनवर्थ रही है, तो कृषि सेक्टर, फार्म सेक्टर और सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है वो कम रहने के बावजूद भी जीडीपी जो है बढ़ी है, ऐसा कहा गया प्रारंभिक अनुमान में। इसके बावजूद जो है कृषि और सेवा क्षेत्र के साथ साथ उपभोक्ता खर्च एज वेल एज सेवा क्षेत्र के साथ साथ कंज्यूमर का जो खर्चा है, उपभोक्ता खर्च के ठोस वृद्धि में गिरावट के बावजूद भारत का जीडीपी बढ़ी है 7.1% जुलाई से सितंबर में। जुलाई सितंबर तिमाही 2023 की तिमाही में उम्मीद से अधिक, जितनी एक्सपेक्टेशन एस्टिमेट किया गया था उससे ज्यादा बढ़ी है जीडीपी। दूसरी तिमाही में सेकंड क्वार्टर में जो दूसरी तिमाही की वृद्धि पिछली तिमाही में 7.8% की वृद्धि से थोड़ा कम थी, लेकिन केंद्रीय बैंक की 6.5% की जो अनुमानित वृद्धि से काफी अधिक थी। केंद्रीय बैंक जो सेंट्रल आरबीआई बैंक के द्वारा अनुमान लगाया गया था कि इस साल इस वृद्धि जो है सेकेंड क्वार्टर में जो वृद्धि होगी 6.5% होगी, ऐसा केंद्रीय बैंक आरबीआई के द्वारा अनुमान लगाया गया था, लेकिन उसकी उम्मीद से बढ़कर जो है 7.8% की वृद्धि रही है। दूसरी वर्ष की छमाही के विकास की संभावना धीमे रहने की बात कही। कंस्ट्रक्शन पुष्ट निर्माण कार्य जो है अस्थायी रूप से सकल घरेलू वृद्धि दर में 7.7% जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का काम है, जो निर्माण कार्य है उसमें 7.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। While the growth is expected to moderate to the second half of the year, economics expected the strong first half numbers of the lift the fully performance by the 0.1% over current projection. The RBI and government expected GDP growth 6.5 this year, considering that the RBI expected quarter 3 and quarter 4 GDP growth in at 6%, 5% respectively. तो कहा गया है कि ग्रोथ एक्सपेक्टेड मॉडरेट रहने के अनुमान जो है दूसरी तिमाही में धीमे रहने की अर्थशास्त्रियों का उम्मीद है कि पहली छमाही के मजबूत आंकड़ों के साथ पूरे साल का प्रदर्शन 0.1 से 0.2% ओवर करंट प्रोजेक्शन बढ़ेगा। आरबीआई और सरकार की उम्मीद है, द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ, उम्मीद है कि इस साल जीडीपी जो है 6.5% से बढ़ेगी। और ईवाई इंडिया के मुख्य सलाहकार डीके श्रीवास्तव ने कहा कि यह देखते हुए कि कंसिडरिंग दैट द आरबीआई एक्सपेक्ट, कहा कि आरबीआई की तीसरी और चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर क्रमशः 6.7 और 5.7 रहने की 6.7 और 5.7 रहने की ऐसा कहा गया है। भारत की जीडीपी बढ़ रही है, ऐसा रिपोर्ट आरबीआई के फोरकास्ट से बाहर निकली है, जबकि इसमें जो फार्म सेक्टर, कृषि सेक्टर का जो वेटेज है कम हुई और सेवा सेक्टर का जो है वेटेज बढ़ा है। थर्ड न्यूज, ये इसको जीएस पेपर 3 से लिंक किया जा सकता है इकोनॉमिकल सेक्टर से। पुअर यूथ वुमेन फार्मर बिगेस्ट कास्ट, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो गरीब है, युवा है, महिलाएं हैं, किसान, ये सबसे बड़ी जाति है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा।
ऐसा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया। अब हम सर्च करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो टू केरला गवर्नमेंट एससी नेक्सस अपॉइंटमेंट। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। अब महत्वपूर्ण जो हमारे आज का एडिटोरियल भी नहीं था, तो आज के लिए हम जो जो था पिछला यूएस और हमास कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, सॉरी, इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो था, तो लगातार कई बार चर्चा करी है, पढ़ना हमारे लिए इतना जरूरी नहीं था। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे और मिलेंगे कल के न्यूज कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। आई होप कि मेरा जो इनिशिएट है ये आपको पसंद आ रहा होगा। मेरा जो इनिशिएट है तो आप सराह रहे होंगे, और जो कुछ नया करने की कोशिश मेरी इंडिवियर जो है अच्छी रही होगी। तो अगर आपको मेरा इनिशिएट अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा और इसको कैसे सुधारा जा सकता है और कैसे तक पहुंचा जा सकता है। ये कमेंट में जरूर सजेस्ट करिएगा, कमेंट को मेरी जो लेग पॉइंट है उसको रिवील करिएगा और सपोर्ट करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ शेयर करिएगा उन सारे दोस्तों तक जिन्होंने जो भी जो यूपीएससी की तैयारी हिंदी माध्यम से करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई में हिंदू जरूर करें, अपने अपनी पढ़ाई में इसको हर्डल न बनने दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और जो है कंटिन्यू बनाए रखिए।